Namo Siddhanam. Jai Jinendra everyone. Namo Siddhanam. Jai Jinendra sabhi ke liye. Welcome to the second webinar of Jain Heritage Center's Jain Heritage series, a webinar on the Jaina architecture in Eastern India by Dr. Lata Botra. Sabhi ko Jai Jinendra. This is Nitin HP here from the team at Jain Heritage Centers. And so before we start off with the actual presentation, I would like to welcome all of you onto this session. Thank you for being a part of this webinar series, and thank you for attending. And before I start, probably I'll just give a quick introduction of Dr. Lata Botra ji. And Dr. Lata Botra ji did a initial graduation. She was a student of political science. She did her MA in political science. And later on, she, out of her interest towards Jainology, she did a PhD on Jainology, and adding to her, and she was not, she did not stop there. She was much more interested to study deeply in the field of Jainology, wherein she went through nooks and corners of Bengal and the West Bengal, and she did a DLit in the with the subject of Bengal ke Jain Puratatva. On that subject, she's been awarded the DLit. In addition to that, she's also the editor of a monthly magazine called as Tirth Yatra, and she's also the editor of a quarterly magazine called as Jain Journal. And she's got 14 creative writings to her credit, and she has edited 48 books. And in addition to that, she about 65 to 70 plus articles, research articles on Jainism and Jain heritage and different aspects have been published in different international and national journals. And she's also been a speaker in many of the international forums and national forums. In addition to this, important of all, she's holding the Jain chair in the All India Institute of Oriental Heritage, where she is guiding students for taking the doctoral study, that is PhD in Jainism. In addition to this, Dr. Lata Botra ji has also produced 3 documentary films on Jainism, which are Shraman Bhagavan Mahavir, Jain Heritage of Undivided Bengal, and Ashtapad, the original source of culture. Ashtapad, which is, like I mentioned, is one of the important things which traces the origin of Adinath Bhagavan, and in the sense and all that heritage and related aspects. That is one of the another very interesting research of Dr. Lata Botra ji. With this, I think it is really a proud moment for all of us from Jain Heritage Centers and Jain Samaj across the world to hear the words, they hear about the architecture of Eastern India through the words of such a renowned learned scholar. I think Madam has spent over 30 plus years in the Bengal region researching about the heritage of Jainism in undivided Bengal. With this, I would like to invite Dr. Lata Botra ji onto the second webinar to be our honorable speaker. With this, I would hand over the forum to Dr. Lata Botra ji. Madam, over to you, madam. We would like to hear you for the next one hour, and later on we will also have an interactive session where people would like to furthermore understand about would like to get their thoughts clarified after hearing your lecture. Over to you, madam. Thank you, नितिन जी. जो देवों के देव हैं, जिनको देव हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और जो इंद्रों द्वारा पूजित हैं, उन्हीं श्री महावीर स्वामी को मैं मस्तक झुकाकर नमन करती हूँ. इस वेबिनार में उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं अभिनंदन करती हूँ और विशेषकर श्री नितिन जैन और अन्य आयोजकों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सभी श्रोताओं को बंग भूमि के जैन गौरव के इतिहास से परिचित कराने का मुझे ये अवसर प्रदान किया है. मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ. बंगाल मेरी कर्म भूमि है, जहाँ पर मैंने जैन धर्म के विषय में, जैन पुरातत्व के विषय में मैंने काम किया है, जिसको मैं आज आपके समक्ष रखने जा रही हूँ. जैन दर्शन ज्ञान मूलक दर्शन है
प्राचीन भारत की भूमि के गर्भ से निकले हुए निर्देशन ज्ञान की साधना का आलंबन है, आंतरिक सौंदर्य की बाह्य अभिव्यक्ति है, शिल्पी के चेतन मन का रूपांकन है, जो बिना साधना और आराधना के संभव नहीं है। इन निर्देशनों के निर्माण के पीछे एक सुदृढ़ सांस्कृतिक परंपरा रही है, एक ट्रेडिशन रहा है जो आदिनाथ ऋषभदेव से प्रारंभ हुआ और जिसे वर्तमान महावीर ने चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। उन्होंने भारत की प्राचीन भूमि में जो पुरुषार्थ और अध्यात्म की ज्योत जलाई, उसे सदियों तक इस क्षेत्र को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध रखा, वरन स्थापत्य कला की दृष्टि से भी समृद्ध बनाया। प्राच्य भारत यानी कि पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया के इन क्षेत्रों को जैन साहित्य में 25.5 आर्य देशों में प्रमुख स्थान दिया गया है। ये क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल से जिन संस्कृति के गढ़ रहे हैं, आज से 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने इस क्षेत्र में विचरण किया था तथा अपनी तपस्या और साधना द्वारा यहाँ के लोकमानस को जागृत किया था। यहाँ के आदिवासी जो सराग जाति है, उनके बीच में वो रहे थे और इसका प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि अनेक उत्थान और पतन के बावजूद आज भी ये जाति उनके मार्ग का अनुसरण कर रही है। ये उनकी जीवन शैली से परिलक्षित होता है। ये बंगाल का मैप है जहाँ के विषय में हम आज सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। ये देखिए राढ़ क्षेत्र है, उत्तर राढ़ और नीचे दक्षिण राढ़, कोटी वर्ष, सोमपुर विहार यहाँ पर है, ये मुर्शिदाबाद, कर्ण सुवर्ण, ये पूरा जगह है जिस क्षेत्र में वर्धमान नाम भी भगवान महावीर से पड़ा और यहाँ पर ही भगवान महावीर का विचरण हुआ था। सबसे प्राचीन अवशेष जो हमें मिलते हैं जैन धर्म के, वो महाभारत कालीन है। संघदास गणी के द्वारा रचित वसुदेव हिंदी में पांड्रा राज्य का वर्णन मिलता है। ये पांड्रा राज्य वर्धमान से धनबाद तक के क्षेत्र में था। इसी पद पर आज एक पाड्रा नामक गांव है और यह नगर ताम्रलिप्त और मगध दोनों जगह के स्थल पद से जुड़ा हुआ है और यहाँ के राजा महापुंड्र वसुदेव के पुत्र और श्री कृष्ण के स्टेप ब्रदर थे। वसुदेव हिंदी में वर्णन है कि राजा पुंड्र की माता शिखजी तीर्थ में तीर्थंकरों की वंदना के लिए जाती थी और बंगाल की सेंसस रिपोर्ट में भी यह उल्लेख है कि प्राचीन काल में पारसनाथ हिल के पास यानी कि इस क्षेत्र में ही जैनियों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, जो शायद ये पांड्रा राज्य ही था। अजय नदी के तट पर महाबालिन अवशेषों में पांडु राजा डिबी का मिलना पांड्रा राज्य में जिन संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। ये एक्सकेवेशन, ये पांडु राजा डिबी का, ये अजय नदी है, इसी के तट पर ये यहाँ पर ये मिला है। आज भी यहाँ चारों ओर प्राचीन स्तूप, मूर्तियां और मंदिरों के भग्नावशेषों का समाहार है और आज भी यहाँ एक विशाल प्रांगण में 6 विशाल प्रस्तर निर्मित मंदिर देखे जा सकते हैं। मंदिर का प्रांगण समतल से यानी जमीन से 20 फुट ऊंचा, 20 फीट हाई और चारों तरफ प्राचीरों से घिरा हुआ है। ये है मंदिर। प्रभु महावीर ने जहाँ विचरण किया था, उस राढ़ क्षेत्र को अजय नदी 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर राढ़ और दक्षिण राढ़। ये देखिए, ये अजय नदी है
और ये ऊपर का हिस्सा उत्तर राढ़ और दक्षिण राढ़ नीचे। ये आसग्राम जहाँ पे भगवान महावीर अस्थिग्राम जिसको बोलते थे वो है। ये मंगलकोट। बंगाल के वर्धमान जिले के में अजय नदी के तट पर बहुत सारे प्राचीन माउंट्स मिले हैं और जिन्हें पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट पी.सी. दास गुप्ता ने व्रात्यों की समाधि बताया है और इन्हें व्रात्यकालीन यानी वेदों के समय का बताते हैं। अजय नदी के पास ही गढ़ डेमो पहाड़ की तलहटी में मंदिरों के ध्वंसावशेष में सिंह प्रस्तर, ये सिंह प्रस्तर मिला है। ये मैप है यहाँ का, नीचे ये सब जगह है, यहाँ पर पूरा ये सब मिलता है। पांचे डैम झारखंड और बंगाल के बीच में, सुइसा, तेलकुपी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, तेनुघाट धाम, ये सारा बांदा, ये यहाँ के जैन इंपॉर्टेंट साइट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हैं। ये रघुनाथपुर, आद्रा, आरा, कंटागुडी, अनारा, छपरा, पारा, ये सारी जगह। बंगाल सीमांत प्रदेश में जो बिहार और उड़ीसा से संलग्न है, यहाँ पर जैन धर्म के साक्ष्य सर्वत्र फैले हुए हैं, जिसके जीवन प्रमाण यहाँ पाई जाने वाली एक प्राचीन जाति जो सराक नाम से जानी जाती है। इन जाति के गोत्रों के नाम तीर्थंकरों के नाम पर हैं, जिनमें आदिनाथ, ऋषभदेव, धर्मनाथ, अनंत देव आदि हैं। कुपलैंड ने गेजेटियर ऑफ मॉनबूम डिस्ट्रिक्ट में लिखा है, सराक जन मूलतः जैन थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। புதுசா போடுறான் தானே, இன்னைக்குதான் ரிலீஸ் ஆகுதுல, ஏதோ டேட் 27 தான் போட்டேன்। कोई प्रॉब्लम है क्या नितिन जी? नहीं मैडम, आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। इन्होंने तांबे की खदानों से तांबा निकालना और लोहे की खदानों से लोहा निकालने का काम बहुत ही कुशलता पूर्वक ढंग से किया था। और अजय नदी के दोनों किनारों पर हमें आज भी उस अंचल में बिखरे लोहा चूर्ण और लोहा अयस्क कहलाने की भट्टियां मिलती हैं, जो इनकी लोहा शिल्प की दक्षता का प्रमाण देती हैं। इसी जाति के प्राच्य भारत में बनाए पाषाण शिल्प के मंदिर और प्रतिमाएं गवाह हैं इनकी पाषाण शिल्प की दक्षता के। और इस पूरे अंचल में जो ज्यादातर जैन अवशेष जो पाए जाते हैं वो इन्हीं सराक जाति द्वारा निर्मित है। प्राचीन काल में यहाँ अवश्य ही कोई भास्कर्य शिल्प कला और मूर्ति निर्माण की कर्मशाला रही होगी, जिसमें दक्ष सराकगण जिन प्रतिमाओं का निर्माण करते थे। प्राचीन काल में ताम्रलिप्त बंदरगाह से पुरुलिया के तेलकुपी होकर एक पथ पाटलिपुत्र तक चला गया। ये देखिए, ताम्रलिप्त से पाटलिपुत्र ये रास्ता जाता है। इसमें व्यापार के साथ साथ सराकों द्वारा निर्मित प्रतिमाएं भी भेजी जाती थीं। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर और अंकोर धाम के मंदिरों की शिल्प कला के निर्माता भी यही लोग थे, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों की स्थापत्य शैली में एक साम्यता देखने को मिलती है। राजा सूर्यवर्मन ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण अपने पुरोहित की देखरेख में करवाया था, जो कर्नाटक और उड़ीसा के सीमा बॉर्डर के निवासी थे। और मंदिर की जो सामग्री थी और सराक शिल्पी लोगों को यहीं से लाया गया था। आज भी इंडोनेशिया में और मलेशिया के सीमांत में एक सरावक द्वीप है, बोर्नियो द्वीप, और यहाँ के लोगों के नाम के बाद वो लोग सराक लगाते हैं। ये पुरुलिया के तेलकुपी जगह है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। पुरुलिया जिले के तेलकुपी के क्षेत्र का इतिहास बहुत आश्चर्यजनक है। यहाँ असंख्य मूर्तियां पाई जाती हैं। वर्तमान में यहाँ 3 मंदिर हैं जो बलाकर के शैली में बने हुए हैं, 2 छोटे प्राचीन मंदिर और एक
दामोदर नदी के किनारे पर है। इन मंदिरों के लिए कहा जाता है कि ये किसी राजा के बनाए हुए नहीं है, बल्कि साधारण लोगों द्वारा बनाए गए हैं। जगह जगह पर जैन निदर्शन या अभिलेख पड़े भी दृष्टिगोचर होते हैं और कहीं कहीं भग्न मंदिर की ईंटों से गांव के मकानों का निर्माण किया गया है। ये देखिए, ये गांव में रखे हुए हैं और ये गांव के जो मंदिर, जो घर जो बनते हैं, वो इस मंदिर को नष्ट करके उसके पत्थरों से बनाए गए हैं। यहाँ के अनेक मंदिरों की किस प्रकार दशा हुई और वे जल में विलीन हो गए, इसका प्रमाण हमें मिलता है 1960 में लिए गए ये चित्र। ये स्वतंत्रता के बाद दामोदर नदी पर जो बांध बनाएगा उसमें सैकड़ों निदर्शन नष्ट हो गए। 1969 में पांचेर डैम के निर्माण में 20 प्राचीन मंदिर और 1985 में चांदिल डैम के निर्माण के समय 26 प्राचीन मंदिर और 100 गांव पानी के गर्भ में समा गए और उनकी शिल्पकला नदी की मिट्टी के गहन अंधकार में सदा सदा के लिए विलीन हो गई। ये देखिए किस प्रकार वो मंदिर पानी में जा रहे हैं, डूब रहे हैं। तेलकुपी के मूल मंदिर नष्ट हो जाने पर मंदिर के विख्यात भगवान महावीर की प्रतिमा, एक नवीन मंदिर जिसका नाम भैरव धाम है, वहां रखी गई, जिसे आज भैरव के रूप में, भैरवनाथ के रूप में तेलकुपी के विख्यात और जागृत देवता माना जाता है। कर्नल डाल्टन के अनुसार there is another of these temples of Telkupi on the Damodar and there is an image still worshipped by the people in the neighborhood which they call Veera. It is probably intended for the 24th Tirthankara, Veera or Mahavir, the last jinn. ये व्हाइट लाइन, ये रेड लाइन। देलघाटा पुरुलिया के जयपुर गांव के 3 मील दक्षिण में कंसावती नदी के तट पर बोड़म गांव में देलघाटा के मंदिर है। यहाँ से ईंट के बने हुए 3 मंदिर और पाषाण से बने अनेक मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिरों में जिन ईंटों का व्यवहार हुआ उनका आकार काफी बड़ा है और नदी के तट के पास जो मंदिर है भग्न और जीर्ण है। दूसरा मंदिर थोड़ी दूर पर है और देलघाटा का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर जिसकी ऊंचाई 60 फीट है, अन्य मंदिरों की अपेक्षा इसका गर्भगृह और द्वार बड़ा है। वंश पथ के साक्षी हैं देलघाटा के ये मंदिर। मंदिर के सर्वांग और फटी हुई गुर्जी की भांति दीवारों पर चित्र दिखाई देते हैं। मंदिर में जिधर भी देखें उधर विभिन्न कलाकृतियां दिखाई देती हैं। कितने आकार के भित्ति चित्र बनाए जा सकते हैं, ये देलघाटा के मंदिर को देखे बिना नहीं समझा जा सकता। मंदिर पर बनी कलाकृतियां विशिष्ट शिल्प कला संस्कृति की अमूल्य देन है, जो ज्यामिति शास्त्र के ज्ञान का भी परिचय देते हैं। शिल्प कला की दृष्टि से इसे बंगाल का गौरव माना जाता है और पुरुलिया जिले की अमूल्य संपदा। बांदा का यह मंदिर 2200 साल 2200 years एंशिएंट है और आज जीर्ण अवस्था में है। मंदिर के सामने एक मंडप पर स्तंभ और छत दिखाई देती है। पाड़ा पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन मंदिर है। पाड़ा का ये मंदिर श्री प्रसाद राय चौधरी ने अपने ग्रंथ बंग साहित्य कथा में लिखा है कि यहाँ सराख ही इस जिले के सबसे प्राचीनतम निवासी हैं और प्राय 2500 वर्ष पूर्व के निर्मित मंदिरों के अवशेष आज भी यहाँ पाए जाते हैं। यद्यपि महाकाल के शोध में मिट गए देह के अलंकार, क्षय हो गए देह के सर्वांग, विवर्ण हो गया रंग, फिर भी एक आलोक स्तंभ की तरह खड़ा कह रहा है यह मंदिर कि मैं अतीत का इतिहास बनकर तुम्हें दिखाने के लिए खड़ा हूँ। यहाँ के मंदिरों के प्रत्येक खंड के मध्य में लोहे के छड़ से उसे गूंथा गया है।
जो उन्हें अन्य जगहों के सराफ मंदिरों से कुछ अलग करता है। आज भी इस मंदिर की भित्ति पर उत्कीर्ण क्षय प्राप्त अतुलनीय नारी मूर्तियां, अश्वारोही पुरुष मूर्ति आदि दिखाई पड़ते हैं। दारकेश्वर नदी के पास बसा है धारापाड़, जो बांकुड़ा जिले में पड़ता है। ये मंदिर, जिसके बाहरी भाग में तीनों ताकों में विशाल प्रतिमाएं विराजित हैं, पृष्ठभाग में ऋषभनाथ, वाम पक्ष में शांतिनाथ प्रभु और तीसरे आले में एक अन्य प्रतिमा स्थापित है। ये दोनों प्रतिमाएं 1200 वर्ष प्राचीन हैं। यहाँ की प्रतिमाओं को स्थानीय लोग नेंगटा ठाकुर या नेंगटेश्वर शिव आदि नाम से पुकारते हैं। पगबीरा अतीत युगीन सराफ संस्कृति का गौरवशाली क्षेत्र है पगबीरा। वर्तमान में यहाँ 4 मंदिर दृश्यमान हैं। पहला बादामी पत्थर का, जिसके ऊपर चक्र था, वो टूट गया है, और दूसरा भी वर्गाकार बादामी पत्थर का, जिसमें चारों ओर तीर्थंकर प्रतिमाएं लगी हैं। यहाँ की मूलांक प्रतिमा काले पाषाण से निर्मित है। और जो महाकाल भैरव के नाम से विख्यात है, ये प्रतिमा, जिसके आगे इस क्षेत्र के लोग मानसिक और सामाजिक मान्यता पूरी करने के लिए बलि देते हैं। अहिंसा के महान साधक तीर्थंकरों की प्रतिमा के सामने पशु रक्त से माटी भीग जाती है। पशुओं की आर्त चित्कार और ताजे लहू से जिस विभत्स दृश्य की सृष्टि होती है, उसकी मात्र कल्पना ही हमें विचलित कर देती है और हमारी आत्मा को झकझोर देती है। कर्नल डॉल्टन ने इस प्रतिमा को 2500 वर्ष प्राचीन बताया है। ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ। अशोक स्तंभ, जहां सराफों की उत्कृष्ट लौह तकनीक कला का प्रतीक है, वहां यह प्रतिमा सराफों की उत्कृष्ट पाषाण कला का। दिनांक 2 फरवरी 1998 के आजकल समाचार पत्र में पुरुलिया जिले के पगबीरा के विषय में लिखा था कि पगबीरा में पहले 6 फुट पर, फिर 5 फीट पर और थोड़ा खोदने पर 7 फीट पर पाषाण की प्राचीन मूर्तियां निकल रही हैं और वर्षों से यह क्रम चल रहा है। गांव वालों की धारणा है कि पगबीरा में कम से कम 500 मूर्तियां माटी के नीचे पड़ी हुई हैं। इन बहुमूल्य संरक्षण के प्रति सभी सरकारें उदासीन हैं। ये बेगोनिया ये भी वर्तमान जिले में पड़ता है और यहाँ से तेलकोट के समान अनेक पाषाण प्रतिमाएं और मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4 मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वो भी सराफ जाति के बनवाए गए हैं। धर्मांधता की आंधी में ये अन्य जगह के मंदिर नहीं बच सके, लेकिन यहाँ के मंदिर शिवलिंग का कवच धारण करते आज भी अक्षत हैं। ये सिद्धेश्वर टेम्पल बराकर अभी बिल्कुल जैन अवस्था में है। कभी ये जैन मंदिर था, आज इसको शिव मंदिर कहते हैं। दिनाजपुर और मिदनापुर, ये यहाँ पे प्राचीन मंदिरों के, जैन मंदिरों के भग्नावशेष पाए गए हैं और जो यहाँ पर जैन धर्म के प्रभाव को प्राचीन काल से दर्शाते हैं। दिनाजपुर मंदिर की प्रतिमा ढाका म्यूजियम में है। ये मिदनापुर का है। ये सड़क के किनारे एक प्रतिमा वहां पर पड़ी हुई थी। ये बांग्लादेश म्यूजियम में इससे ये प्रतिमा हमें मिली है, वहां पे हमने देखी वहां जाकर। ये ढाका में पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिमा है। हार मासरा
बांकुड़ा जिले की हारमासा गांव में पत्थर का शिखर युक्त मंदिर है, जिसके पीछे पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा है। परिकर में अष्टग्रह, महापर्याय, प्रतिहार्य, धनेन्द्र, पद्मावती की सुरुचिपूर्ण कला प्रेक्षणीय है। ये हारमासा का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के से प्राग ऐतिहासिक काल की यह प्रतिमा है प्रभु ऋषभ देव की, जिसका समय ज्ञात नहीं है। अननोन पीरियड। मालदा की प्रसिद्ध अदीना मस्जिद प्रभु आदिनाथ ऋषभ देव का मंदिर था, जिसे 13वीं शताब्दी में मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया था। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण यक्ष यक्षिणी प्रतिमा इसके मंदिर होने का स्वतः प्रमाण दे रहे हैं। जटाल देउल दिघी 24 परगना की राय दिघी में अवस्थित है जटाल देव मंदिर। यह सराकों द्वारा निर्मित ग्रीक शैली का मंदिर है। वर्तमान में यह भी शिव मंदिर में परिवर्तित हो चुका है। बहुलारा गांव के बाहर वृक्षों की झुरमुट के बीच अहाते में एक बहुत ही ऊंचे शिखर वाला कलापूर्ण मंदिर है। यहाँ की शिल्प कला बहुत ही प्रशंसनीय है और भुवनेश्वर के मंदिरों की भांति है। आसपास के मंदिर ध्वंस हो चुके हैं। यहाँ पर अतीत में अनंत देव गोत्र के सराकों की बस्ती थी। ये बहुलारा के मंदिर। ये दापुनिया का मंदिर है, जिसमें यहाँ पर सराक लोग वर्ष में आसपास के सब आकर के इकट्ठे होकर और त्योहार मनाते हैं। ये सराक टैंक्स हैं। हम जब वहां पर गए थे तो वहां पर बहुत सारे तालाब हमने देखे बीच बीच में, तो इनको वो वहां के लोग सराक तालाब कहते हैं। ये पंचकोट नामक एक जगह है पुरुलिया जिले के में। जब हम लोग वहां गए थे तो वहां पर एक गुफा, वहां के लोग लेकर हमें गए एक गुफा में, जो 300 फीट पर है और घने जंगलों के मध्य है। स्थानीय लोग इस गुफा को 3000 वर्ष पुराना बताते हैं। उसके अंदर एक तीर्थंकर प्रतिमा खुदी हुई है और ऐसा मुझे देखकर ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर जैन मुनि साधना करते होंगे। लॉस्ट सिटी ऑफ जैन्स। टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल में इसके बारे में लॉस्ट सिटी ऑफ जैन्स के बारे में लिखा है। 20 किलोमीटर फ्रॉम आसनसोल, ए हम्पी रोड टेक्स यू टू मुचरा, a forgotten part of history where time has stood still for centuries. There are 50 families here with a shared past like none else in the country. This is the holy abode of the Bengali Jains. At first glance, the temples, the deities, and the numerous carved stones lying scattered in the dense underground. Most of Jain families of Puchra lead a life of abstinence. They don't even eat onions, potatoes, and masoor dal. These families call themselves Saraks or the Adi Jains. Arun Maji, priest of local Jain temple, believes that Lord Mahavira attained enlightenment on the bank of nearby Ajay River. Those who came in touch with him were called Shavaks. He claimed that the ruins of an entire city dating back 1400 years lies buried under the village. अरुण माझी के पास हम जब वहां गए तो हम जा नहीं सके क्योंकि रोड बहुत खराब था। तो मैंने एक पत्र लिखा था अरुण माझी को, तो जिसके जवाब में उन्होंने लिखा है, मैं ये पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ आए थे। उन्होंने पुचरा गांव के राजपाड़ा में स्थित प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष के स्थान पर यंत्र लगाकर निरीक्षण करके बताया कि राजपाड़ा के भूगर्भ में तीर्थंकरों की कई स्वर्ण प्रतिमाएं मौजूद हैं। राजपाड़ा के संलग्न जमीन पर 4-5 फुट खुदाई पर बड़े बड़े मकानों की बुनियाद मिलती है। उन्होंने आगे अपने पत्र में लिखा, किसी को यहाँ आकर कोई असुविधा नहीं होती।
गरीब होते हुए हमारे घरों में प्याज लहसुन का प्रवेश निषेध है, आज से नहीं परंपरा से। और मैं तो रात को भोजन भी नहीं लेता। इस पूरे अंचल में बिखरे प्राचीन निदर्शन एक जीवंत इतिहास के प्रमाणिक दस्तावेज हैं, जो हमें हमारी प्राचीन संस्कृति की बहुमूल्य विरासत की छवि दिखा रहे हैं। चंद्रकेतुगढ़, ये कलकत्ता से मात्र 48 किलोमीटर दूर है और वहां खुदाई के दौरान एक विशाल मंदिर का ढांचा मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहां एक जिन प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जिसके विषय में श्री गौरी शंकर डे ने अत्यंत महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। गौरी शंकर डे लिखते हैं, both the archaeological and literary evidence indicates that Bengal had an early association with Jainism. Jainism flourished in Bengal long before the Christian era and continued in its full form at least up to 7th century AD. In this connection, the torso of the Tirthankaras found in the ruins of Chandraketugarh, a well-known archaeological site of West Bengal, deserves special mention. It has close resemblance with the Lohanipur torso, represent the oldest Jain image extant in Bengal. ये मौर्यकालीन कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मत है कि ये उससे भी प्राचीन है। ये पहाड़पुर बांग्लादेश की राजशाही जिले में, वहां पर एक बौद्धकालीन विहार निकला है और इस विहार के नीचे जब और खुदाई की गई तो वहां से जैन संस्कृति के अनेक निदर्शन और 26 प्रकार के स्तूप निकले। इतिहासकारों का मानना है कि पहले ये जिन संस्कृति का विहार था और बाद में इसको परिवर्तन किया गया। यहीं से एक ताम्रपत्र शिलालेख मिला है जिसमें ये है, जिसमें 3 जगह पे जम्मू देव का विवरण है। तो ये जम्मू देव यानी जम्मू स्वामी, और इससे एक प्रोफेसर है इतिहास के, उन्होंने ये लिखा है कि ये जम्मू स्वामी का निर्वाण स्थल भी यही ही था। इसे अभी वर्तमानी सोमपुर विहार कहते हैं। मैनामती कोमिल्ला, मैनामती बांग्लादेश की कोमिल्ला शहर के पश्चिम में 8 किलोमीटर लंबी और 40 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है, जिसके उत्तरी भाग मैनामती और दक्षिणी भाग लालमई कहलाता है। इसके बाद से त्रिपुरा के जंगल प्रारंभ हो जाते हैं, जिनमें से हो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ शमन आकर बसे थे, ऐसा मुस्लिम इतिहासकार उमर खालिद का मानना है। उन्होंने लिखा है, Jains were the first one to put their idealism into concrete evidence in and around the region of Menamati and Lalbai. बाड़ी बटेश्वर, यहाँ से अजातशत्रु के समय के सिक्के मिले हैं, जिसमें स्वस्तिक नंदी पद आदि भी बने हुए दिखाई देते हैं और एक कमल मंदिर के अवशेष मिले हैं। और इतिहासकारों का मानना है कि ये बहुत ही प्राचीन जगह है। विक्रमपुर इसका पुराना नाम था। ये है, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई है वो ये है। पच्चीस साल पुराना ये था, यहाँ पे जो सिक्के मिले हैं। उसके बाद ये लास्ट में द टेस्ट हैज बीन कंफर्म दैट बाड़ी सेटलमेंट इन 450 BC, और कुछ लोगों ने इसे इतना 700 to 400 BC मानना है।
जैसोर के मणिपुर राम में दमदम पीर बांग्लादेश में खुदाई के दौरान मल्लीनाथ प्रभु की 1800 साल प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो वहां के संग्रहालय में रखी हुई है। ये 6-7 इंच की रेड बसाल्ट की प्रतिमा है, इसी जगह से मिली है ये प्रतिमा। चंद्रनाथ हिल, बांग्लादेश में ही चंद्रनाथ हिल हमें मिला है, जो चंद्र प्रभु तीर्थंकर से संबंधित है। अभी इसको शिव कहते हैं, चंद्रनाथ शिव। ये बांग्लादेश के सरोवर से ये एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसमें 24 तीर्थंकर हैं परिकर में। अंबिका नगर, वर्धमान जिले के अंबिका नगर का नाम 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की शासन देवी अंबिका के नाम से पड़ा है। आज भी, और ये नाम आज भी प्रचलित है, और यहाँ अनेक मंदिर हैं जो आज शैव मंदिरों में परिवर्तित हो गए। अंबिका मंदिर के पृष्ठ भाग में तीर्थंकर ऋषभ देव की यह प्रतिमा है। ये देखिए, बहुत मंदिरों के अवशेष दिख रहे हैं, प्रतिमा दिख रही है। सुईसा, यहाँ 2 मंदिर परिलक्षित होते हैं। एक तो नष्ट प्राय है और दूसरा खड़ा हुआ, और ये इसमें एक अत्यंत मोहक प्रतिमा है। किरीटेश्वर, ये मुर्शिदाबाद जिले का अजीमगंज, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर उसके पास वो भी एक तीर्थ स्थान है, और उसके पास ही 7 किलोमीटर पर ये किरीटेश्वर है, जहाँ प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष भी दिखाई देते हैं। यहाँ की मूल प्रतिमा शिव के नाम से पूजी जाती है। तंत्र चूड़ामणि निर्णय में किरीटेश्वर देव का नाम बिमला देवी लिखा हुआ है। बंगाली इतिहासकारों ने लिखा कि यह मूर्ति बुद्ध की मूर्ति जैसी है, और जब हम गए, हमने वहां देखा तो हमें लगा कि वास्तव में यह प्रतिमा विमलनाथ प्रभु की है, और किरी का एक अर्थ वराह होता है, जो उनका लांछन है। ये यहाँ खंडहर दिखते हैं मंदिरों के। ईटखोरी, झारखंड, झारखंड के ईटखोरी में पाषाण खंड तीर्थंकर प्रतिमा, रांची और हरादी के ये मंदिर झारखंड में प्राप्त जैन निर्देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अनेक जैन प्रतिमाएं तीर्थंकरों, शासन देवी देवताओं की सब जगह देखने को मिलती हैं। ये सिमरिया महादेव का जो मंदिर है जमुई में, उसमें 5 मंदिरों का तीर्थमालाओं में उल्लेख आता है, जो आज शिव मंदिर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। ये 6 देवालयों का समूह है, जो 3 ओर विशाल पुष्करणी से घिरा हुआ है। अनुश्रुतियों से स्पष्ट होता है कि सिमरिया के इस जैन तीर्थ को शैव तीर्थ में परिवर्तित करने का कार्य गिद्धौर के राजा पूरनमल ने किया था। ये अंबिका लालपुर, अनेक मूर्तियां हमें पुरुलिया में अलग अलग मिली हैं, कुछ एक स्थान में रखी हुई हैं, उनकी ये चित्र हैं। ये अष्टपद बना हुआ है। ये वहां गांव में चबूतरे के ऊपर इस तरह की सब मूर्तियां रखी हुई थी। ये जंगल में पेड़ों के वृक्षों के नीचे ये मूर्तियां पड़ी हैं अवहेलित होकर। ये चौमुखा है। ये चांदिल डैम जब बना था, तब उसमें से जो पानी में मंदिर चले गए थे, उनमें से जो मूर्तियां जो निकली, उनके ये चित्र हैं। ये पवनपुर के जैन मंदिर की क्षेत्र है। ये बराबर केव्स, गया से 34 किलोमीटर दूर बराबर की पहाड़ी पर बनी अति प्राचीन मौर्यकालीन गुफा है, और यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार अशोका के पुत्र दशरथ द्वारा आजीवकों को यह गुफाएं प्रदान की गई थी। लेकिन जब उड़ीसा के सम्राट
खारवेल यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद से यहाँ पर ग्रंथ मुनि निवास करने लगे और यहाँ पर ये प्रतिमाएं हमें जैन मिलती हैं। ये शिलालेख है। सोनभद्र केव ऑफ राजगिरी, राजगिरी के सोनभद्र केव की ये चित्र है। झारखंड के हजारीबाग में स्थित कोल्हुआ पर्वत के विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ के अवशेष जैन हैं, मूलतः जैन हैं, और गुफा के अंदर पारसनाथ की प्रतिमा और अन्य तीर्थंकर प्रतिमा है। इस पहाड़ी में चारों तरफ जैन अवशेष पड़े हुए दिखाई देते हैं। असम के ग्वालपाड़ा से 14 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित सूर्य पहाड़, जिसे स्थानीय निवासी संथाली पर्वत कहते हैं, इस पर 7 टूके हैं और पहाड़ के ऊपर ये 7 टूके हैं यहाँ पर। और पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में एक पदम प्रभु और एक ऋषभदेव स्वामी की प्रतिमा है, और एक दूसरी गुफा में चक्रेश्वरी देवी की 12 भुजा की तस्वीर है। नेक्स्ट सर। उड़ीसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक खंड है जैन इतिहास में। यद्यपि आज उसका क्षेत्रफल इतना विशाल नहीं है जितना कि प्राचीन काल में था, लेकिन उसकी सीमाओं के विषय में R.D. बनर्जी ने लिखा है, The vast country on the eastern shore of the Bay of Bengal, which extended from the delta of the Ganges to that of Godavari, was called Kaling in ancient times. प्राचीन काल में बंगाल की खाड़ी को कलिंग सागर कहते थे। उस समय और राष्ट्र कलिंग, ककोद, उत्कल, दक्षिण कौशल और गंगरादि इन 6 क्षेत्रों से मिलकर उड़ीसा बना था। कभी एक राजा के अधीन रहे और कभी कभी स्वाधीन। कलिंग 3 भागों में बटा हुआ था, दक्षिण कलिंग, मध्य कलिंग और उत्तर कलिंग। इस कारण कलिंग के राजाओं को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि दी गई थी। और लोअर बर्मा के मूल निवासी स्वयं को तेलिंग कहते हैं, जो त्रिकलिंग का ही पर्याय है, और उससे यह स्पष्ट होता है कि कलिंग का साम्राज्य बर्मा तक विस्तृत था किसी समय। महाभारत में भी हमें कलिंग का वर्णन मिलता है। कौरवों के युद्ध में कलिंग की सेना ने कौरवों के साथ युद्ध किया था। प्राचीन पुराणों और चीनी यात्रियों के विवरण में भी उत्कल के संबंध में वर्णन मिलता है। उड़ीसा के साथ जैन धर्म का संपर्क 18वें तीर्थंकर आर्यनाथ से है। त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र में कहा गया है कि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने प्रथम दीक्षा राजपुर में ग्रहण की थी। महाभारत में राजपुर को कलिंग की राजधानी बताया गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कलिंग देश से गहरा रहा है, और पार्श्वनाथ ने कलिंग में जैन धर्म का प्रचार किया था। ताम्रलिप्त बंदरगाह से कलिंग को प्रस्थान किया था और कटक में धन्य नामक गृहस्थ के घर से आहार ग्रहण किया था। वर्तमान में यह कटक बालेश्वर जिले का कुपारी ग्राम है, जो ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी में कुपारक गांव के नाम से प्रसिद्ध था। जैन कथा साहित्य में चित्रसेन पद्मावती चरित्र में भी हमें कलिंग का वर्णन मिलता है। करकंडू राजा के जीवन का एक बहुत ही आश्चर्यजनक विवरण हमें देता है, और यह पार्श्वनाथ के बाद महावीर के पुत्र कलिंग के राजा थे। वे पार्श्वनाथ की परंपरा के अनुयायी थे। उत्तराध्ययन सूत्र के 18वें अध्याय में इसका विवरण है।
जिसमें यह लिखा है कि जब वह कलिंग में राज्य करते थे उस समय पांचाल में द्विमुख, विदेह में नमी और गंधार में नगई राजा राज करते थे। और यह भी कहा जाता है कि इन राजाओं ने अपने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली थी और इसकी राजधानी दंडपुर बताई जाती है। महाभारत में ये कथन लिखा है कि अनार्य कलिंग देश वासियों से दूर रहो, क्योंकि वह वेद नहीं मानते, ना यज्ञ करते हैं, यहाँ तक कि देवता भी उनके हाथों से बलि ग्रहण नहीं करते। और यह उल्लेख कलिंग में प्राचीन काल से जैन धर्म का प्रभाव को दर्शाता है। भगवान महावीर के समय भी कलिंग के काल मगध से जुड़ते हैं। जैन हरिभद्र व्रती के अनुसार कलिंग के शासक महावीर के पिता के मित्र थे, जिन्होंने महावीर को देशना हेतु आमंत्रित किया था। आवश्यक सूत्र में तोशाली में उनके द्वारा उपदेश देने की उपस्थिति होती है। नंद राजाओं के समय कलिंग मगध राज के अंतर्गत हाथी गुम्फा लेख की 6वीं और 12वीं पंक्ति में 2 बार नंद राजाओं का उल्लेख हुआ है। कलिंग को पराजित कर नंद राजा महापद्मनंद विजय स्मारक के रूप में कलिंग जिनको मगध ले गए थे वहां प्रतिष्ठित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, उनका साम्राज्य विशाल होने पर भी कलिंग उसके अंतर्गत नहीं था। कलिंग से उनकी मित्रता के संबंध थे, लेकिन चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक ने कलिंग को जय किया था और ये युद्ध कितना भयानक हुआ इसका विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में हमें मिलता है। अशोका के पहले से कलिंग एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, लेकिन अशोका की विजय के बाद कलिंग ने अपने आप को बहुत शीघ्र ही पुनः स्थापित किया। अशोका के बाद कलिंग में कलिंगाधिपति महाराजा खारवेल का नाम आता है, जिनका जो नाम है कलिंग के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों से इनका नाम लिखा जाना चाहिए। उन्होंने न केवल कलिंग को भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, बल्कि जैन संस्कृति के विकास में भी अमूल्य योगदान दिया। ये उनका साम्राज्य था जिसमें ऊपर कश्मीर से लेकर और नीचे तक सिलोन तक उन्होंने विजय प्राप्त की थी। फुल्ला जिले की एक पहाड़ी भुवनेश्वर से 3 मील उत्तर में है। यह पर्वत 3 भागों में विभाजित है, उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी। उदयगिरी 110 फुट ऊंचा है और खंडगिरी 123 फुट। मुख्य गुफाएं उदयगिरी में 44, खंडगिरी में 19 और नीलगिरी में 3 हैं। इसके अलावा अनेक छोटी छोटी गुफाएं भी हैं। रानी गुफा, रानी हंसपुरी गुफा, उदयगिरी में जितनी गुफाएं हैं उनमें यह सबसे बड़ी और सबसे उत्तम चित्रकारी से चित्रित है। यह 2 तल्ले की है। इस गुफा में बहुत से दृश्य अंकित हैं। ये इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर ये एक इस चित्र में एक साधु की यात्रा को दिखाता है जो धार्मिक उत्सव में नगर के भीतर चल रहे हैं। लोग अपने घरों से उनका दर्शन कर रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, प्यादे जा रहे हैं, स्त्री पुरुष हाथ जोड़े साधु के पीछे जा रहे हैं। इस चित्र में सम्राट खारवेल और उनकी पटरानी प्रभु की उपासना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये युद्ध की तैयारी करते युद्ध के लिए निकलने जा रहे हैं। ये गैलरी है, गलियारा है और यहाँ के दरवाजों के ऊपर पैनलों में उत्कीर्ण चित्र खारवेल के जीवन प्रसंगों को अभिव्यक्त करते हैं। ये एक सैनिक है जो द्वारपाल, ये अप्सरा है मेकिंग एन ऑफरिंग। ये मंचपुरी केव है, इसमें 5 दरवाजे हैं। चौथे द्वार पर एक लाइन का शिलालेख है जिसमें लिखा है खरस महाराजा कलिंगाधिपति महामेघवाहन अर्थात चतुर महाराजा कलिंग देश के स्वामी महामेघवाहन या पुणे प्रसिद्धि की गुफा। और यहाँ पर
एक दूसरा लेख है जिसमें कुमार वधूरवस लेनम, कुमार वधूरव की गुफा, शायद ये खारवेल के पुत्र हों। और इसी मंचपुरी गुफा के ऊपर के खाने में एक और लेख है जिसका अर्थ है ये गुफा श्री अरहंत के प्रसाद या मंदिर रूप कलिंग देश के श्रमणों के लिए बनाई गई है। ये राजा खारवेल की पटरानी द्वारा निर्मित की गई है जो राजा लालकस की पुत्री थी। इसको सर्वपुरी गुफा भी कहते हैं। इस गुफा के पीछे की तरफ गणेश की प्रतिमा होने के कारण इसे गणेश गुफा कहा गया है। इसके बरामदे में हाथी कमल के ऊपर आम वृक्ष की शाखा लेकर खड़े हैं। ये पीछे में गणेश आइडल है। सर्प गुफा, ये एक छोटी गुफा है, इसमें 2 शिलालेख हैं। एक द्वार के बाईं ओर जो शिलालेख है उसमें चूल कर्मन का अजय कोठा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक दूसरी शताब्दी का लेख है, नगर वंश संभूत नोसेनम, नगर जसभूति की गुफा। ये खंडगिरी की पहली गुफा है, तत्व गुफा। यहाँ पर पहली शताब्दी पूर्व का एक लेख है, 1st सेंचुरी बीसी का। ये तत्व गुफा दूसरी, जिसमें अभी जो खंडगिरी के जो शिलालेख है उनमें सबसे प्राचीन शिलालेख यहाँ से मिला है। पद्मूलिकस कुसुमास लेनम, ये नमुनि केव है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी का एक लेख है मिलता है हमें, जिसके अनुसार उद्योत केशरी देव के उन्नतिशील राज्य के 18वें वर्ष में श्री कुलचंद्र आचार्य यहाँ विराजित थे, जो श्री आर्य संघ कुलदेशी गण के शिष्य थे। इसी में एक दूसरा शिलालेख भी है जिसमें शुभचंद आचार्य का नाम स्पष्ट है। नवमुनि गुफा के दाहिने कमरे में 10 तीर्थंकरों की और नीचे शासन देवियों की प्रतिमाएं हैं। अंबिका गुफा, इसमें 2 ऋषभदेव प्रभु की और साथ में अंबिका देवी की प्रतिमा है। इसको सिंह गुफा भी कहते हैं। अंबिका देवी की गुफा प्रतिमा यहाँ होने के कारण इस गुफा का नाम अंबिका गुफा पड़ा है। केशरी केव, ललतेंदु केशरी गुफा, यह 2 खंड की गुफा है। पहले खंड के कमरे में 5 तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, जिनमें मुख्य पार्श्वनाथ स्वामी की है। यहाँ भी एक शिलालेख है और जिसमें राजा उद्योत केशरी का नाम और संवत 5 का उल्लेख है और खंडगिरी का नाम कुमार पर्वत लिखा हुआ है। यहाँ जी मंदिर और वापी थे, वहीं 24 तीर्थंकरों को स्थापित किया गया था और प्रतिष्ठा के समय में वत्सनंदी आचार्य उपस्थित थे। जय विजय के एक गुफा में कल्प वृक्ष की पूजा करते हुए लोगों का चित्र उत्कीर्ण है। ये यवन द्वारपाल दिखाए बाहर खड़े हुए। अनंत गुफा, खंडगिरी की दाहिनी तरफ एक लंबा कमरा है जो 23 फुट चौड़ा, 24 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा है। इसमें 4 द्वार हैं और अंदर की भीत पर मांगलिक चित्र अंकित हैं। यहाँ पर एक ईस्वी फुट का लेख भी है और एक दूसरा लेख और मिलता है। ये अलकापुरी गुफा है, ये डबल स्टोरी गुफा है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट गुफा जो कि इतिहास प्रसिद्ध है वो है हाथी गुफा। हाथी गुफा खारवेल द्वारा निर्मित गुफा में सबसे महत्वपूर्ण है मानी जाती है और इसमें उत्कीर्ण शिलालेख। ये गुफा 2nd सेंचुरी बीसी की है और कुछ गुफाएं इससे पूर्व की भी हैं, क्योंकि खारवेल के पूर्व यहाँ जैन साधु निवास करते थे, ऐसा इस शिलालेख में वर्णित है। और जिससे यह पता चलता है कि खंडगिरी उदयगिरी का नाम 10वीं 11वीं शताब्दी तक कुमार तथा कुमारी पर्वत प्रसिद्ध था।
इन गुफाओं के विषय में जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है, The whole style of the architecture and sculpture in the older caves here point to a period quite as early as that of Sanchi Gateway and the small viharas of Bhaj, and we cannot be far wrong in ascribing most of them at least to the 2nd century before our era. ये ऐतिहासिक दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे खारवेल के राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख को सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में पादरी स्टर्लिंग ने देखा था और उस समय ये लेख बहुत जर्जर अवस्था में था और करीब 100 वर्षों के प्रयत्न के बाद सन 1998 में इसको पढ़ा जा सका और तब यह निश्चित हुआ कि यह लेख कलिंगाधिपति महामेघवाहन खारवेल का है। इस शिलालेख की प्रथम लाइन में सबसे पहले नमो अरिहंतानम नमो सभ्य सिद्धांत का उल्लेख है और यह नमोकांत मंत्र की प्राचीनता को ही सिद्ध नहीं करता वरन खारवेल के जिन धर्मी सम्राट होने की भी पुष्टि करता है। इस शिलालेख के अनुसार सम्राट खारवेल 9 वर्ष तक युवराज रहकर 24 वर्ष की आयु में राजा बने थे। अभिषेक के प्रथम वर्ष में किले के दरवाजे का जीर्णोद्धार कराया था, 35 लाख प्रजा का मनोरंजन किया था। दूसरे वर्ष में राजा सतकर्णी पर हमला कर पराजित किया था। तीसरे वर्ष में प्रजा के मनोरंजन के लिए उत्सव कराए थे और नंद राजा के 103 संवत में खुदी नहर को तंसुले के रास्ते राजधानी के अंदर लाए थे। प्रजा का कर माफ किया था। 7वें वर्ष में महारानी दूषिता ने मातृपत्र को प्राप्त किया और 8वें वर्ष में गोरखगिरी पर आक्रमण करके यूनानी राजा डेमेट्रियस मथुरा छोड़कर भाग गया और 10वें वर्ष में पूरे भारतवर्ष पर चढ़ाई कर अपना वर्चस्व कायम किया था। 11वें वर्ष के उत्तर में अभियान में राजाओं को बहुत दुख दिया। 12वें वर्ष में मगध पर हमला करके अपने हस्तियों को राजप्रसाद तक ले गए और मगध के राजा बृहस्पति मित्र पुष्यमित्र को अपने चरणों में झुकाया तथा नंद राजा द्वारा ले जाए गए कलिंग जिन की प्रतिमा को वापस कलिंग में लाकर प्रतिष्ठित किया। पांडे राज्य को विजित किया। 13वें वर्ष में पवित्र कुमारी पर्वत पर स्तूप और गुफाओं का निर्माण कराया जहां पहले से ही जैन धर्म का चक्र सुप्रवर्तमान था। रानी गुफा का निर्माण कर वैडूर्य रत्न वाले 4 स्तंभों को स्थापित किया। 75 लाख के व्यय से मौर्य काल में उच्छेदित हुए 64 अध्याय वाले अंग सप्तकों का चौथा भाग पुनः तैयार कराया। यह क्षेमराज बुद्धराज भिक्षुराज धर्म कल्याण करते हैं। इन शिलालेखों में दिए विवरण की पुष्टि हमें हिमवंत पट्टावली से होती है जो 4वीं शताब्दी की रचना है। आचार्य हिमवंत सूर्य द्वारा रचित है। अंग शास्त्रों के उद्धार के संबंध में विस्तृत विवेचन हमें इस पट्टावली में मिलता है और कुमारगिरी पर खारवेल द्वारा आयोजित जसप्रीत संघ के सम्मेलन में जो श्रमण श्रमणियां श्रावक श्राविका उपस्थित थे उनके नामों का भी उल्लेख हमें मिलता है। और इस प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है कि खारवेल कोरा विजेता नहीं था, वे सुशासन और शांतिकालीन कला में भी दक्ष था। वह स्वयं एक अच्छा संगीतज्ञ था। नृत्य समारोह जैसे मनोरंजन आयोजनों का द्वारा लोक रंजन करता था। उसे सिंचाई और जन उपयोगी कार्यों पर बहुत सावधान व्यय किया। वह एक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने राजधानी को भवनों से सुसज्जित किया था। नगर के बीच उसका विशाल महाविजय प्रसाद था। वह कट्टर जैन था। मगध और अंग के रूप में वह उन मूर्तियों को वापस ले आया जिसे कलिंग का कोई नंद राजा उठा कर ले गए थे। ये शिलालेख है खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख। ये वहां पर एक स्ट्रक्चर मिला है जिसमें कहते कि यहाँ जैन मंदिर उसने निर्मित कराया था। सम्राट खारवेल की महत्वता इस पिक्चर से प्रकट होती है जो संसद भवन के
हॉल के पैनल नंबर 19 में लगी हुई है। ये वो यहाँ पर जिन विजय प्रसाद कहते हैं ये बना था, उसके ये आज भी ये मौजूद है स्तंभ। इस प्रकार प्रागैतिक काल से उड़ीसा में ऋषभ संस्कृति द्वारा प्रभाव परिलक्षित होता है, जो खारवेल के समय अपने पराकाष्ठा तक पहुंच गया। यदि महाराजा खारवेल का निष्पक्ष रूप से सही मूल्यांकन किया जाए तो उनका विशाल साम्राज्य और अहिंसा की भावना इतनी उच्च कोटि की थी कि वह सम्राट अशोक से भी, साम्राज्य की दृष्टि से और धार्मिक प्रभाव की दृष्टि से भी महान माने जा सकते हैं। ये सुबई, उड़ीसा के सुबई टेम्पल्स हैं जो अभी शिव मंदिर कहे जाते हैं, लेकिन ये जैन मंदिर हैं। ये देखिए यहाँ पर जैन प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। ये जगन्नाथ टेम्पल के विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भारत का बहुचर्चित बहुप्रसिद्ध उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर श्रमण संस्कृति के आदि पुरोधा ऋषभ देव का मंदिर है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू के अनुसार उड़ीसा की जगन्नाथ संस्कृति पर शावक संस्कृति का प्रभाव है। मंदिर में कोयले बैकुंठ है जो शावक संस्कृति से जुड़े कैवल्य शब्द से आया है। जगन्नाथ मंदिर को जैन कहने का एक और कारण है कि जगन्नाथ मंदिर के अहाते में ये जैन मूर्तियां वहां पर आज भी दिखाई पड़ती हैं। Two Tirthankas idols can be found on the outer walls of Jagannath Temple, Puri. ये कोणार्क का मंदिर है। सूर्य मंदिर ये, और ये भगवान इस मंदिर के बनाने के पहले यहाँ पे भगवान महावीर का एक छोटा सा मंदिर था। उसके स्थान पर ये विशाल जिनालय बनाया गया है। ये कहते हैं यहाँ के राजा और मंदिर के शिल्पकारों ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर की शैली, धर्म चक्र, कलश आदि की स्थापना जिन मंदिरों के सहस्य है। इसको सूर्य मंदिर भी कहना इसे ऋषभ संस्कृति से जोड़ता है। जिस प्रकार प्राचीन दिशा में सूर्य उदित होकर अपने प्रकाश से सभी जीवों में प्राण शक्ति का संचार करता है, वैसे ही प्रभु ऋषभ देव ने सारे जीव जगत में ज्ञान का संचार किया था। ये अयोध्या बालासोर की प्रतिमाएं हैं। कोरापुट, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट, कटक, उड़ीसा को ऋषभ देव के साथ इसकी सूर्य की समानता के विषय में ये कहा जाता है कि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो या असम का सूर्य पहाड़, बंग शब्द का अर्थ हो या जगन्नाथ मंदिर, ऋषभ देव की उपासना सूर्य के रूप में प्रचलित रही है। इसी संदर्भ में नीलकंठ शास्त्री का यह लेख महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जैन शब्द है, ऋषभ देव के साथ इसकी समानता है। ऋषभ देव का अर्थ है सूर्यनाथ या जगत का जीवन रूपी पुष्प। यह प्राचीन बेबीलोन का आविष्कार है। प्रोफेसर सईद ने अपने वक्तव्य में कहा था, इसी सूर्य को वसंत विषुवत में देखने से लोगों ने समझा कि अब हल जोतने का समय हो गया है। वे विषभ से हल जोतते थे, इसलिए कहा जाता था कि विषभ का समय हो गया। यह सूर्य या जगत का आत्मा ही परम पुरुष या पुरुषोत्तम है। अतः इजिप्शियन पुरुषोत्तम और पुरी के पुरुषोत्तम दोनों जैन धर्म के परिणाम हैं। जिस प्रकार सूर्य
प्राची दिशा से उदित होता है, ऐसे ही भारत की प्राच्य भूमि ऋषभ संस्कृति का उद्भव स्थल रही है। शायद इसीलिए सभी प्राचीन संस्कृतियों में यह मान्यता रही है कि मानव संस्कृति का प्रारंभ पूर्व से हुआ और पूर्वी भारत का जैन धर्म से आदिकाल से संबंध रहा। जैनों का वह चिंतन जिसका उदय पूर्वी भारत से हुआ, वह इतना विशद, उज्ज्वल, उदार, तेजस्वी, मानवीय और परोपकारी है कि उसे विश्व के अंतिम जन तक पहुंचाकर विश्व के नव भाग्य का सुखद निर्माण किया जा सकता है। धन्यवाद। Thank you, madam. It was really very enlightening. We have been receiving questions all throughout the session. I think मैं आपको 2-4 प्रश्न जो आया है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अपना राजेश बांटिया जी फ्रॉम बैंगलोर पूछ रहे हैं, जो who are the tribals of Bengal who are following Jaina principles or Jaina way of life even to this day? Saraks. Okay. So, madam, when it comes to the Saraks, so what is the extent to which is the community still aware that they are already aware that they were Jains earlier? हाँ, वो लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज जैन थे, यद्यपि आज भी जैन हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग आज वैष्णव बन गए हैं काल के प्रभाव से। तो लेकिन वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशन जैन ही था प्राचीन काल में, और वो वैष्णव होते हुए भी पारसनाथ जो हिल है उसकी मान्यता बहुत है उनमें। उस तरफ धान को अर्पित करते हैं और बहुत ही पूज्य मानते हैं उनको। और वो अभी भी मतलब वो कोई भी लाल चीज नहीं खाते, लाल रंग की चीज कोई नहीं करते, डूमर है, टमाटर है, इसका प्रयोग नहीं करते, काटना शब्द का व्यवहार नहीं करते। मतलब वो चल रहा है, ऊपर से वो वैष्णव बन गए हैं। Madam, but what is the rough, any idea of the population of Saraks across the region? हाँ, करीब 50,000-60,000 होंगे। मतलब आपके शिखर जी, बंगाल, उड़ीसा सब मिला के almost 60,000 के आसपास है। हाँ। Madam, there is one more question from Virendra Kumar from Hadavalli. He is asking, जो बांग्लादेश का जैन पुरातत्व का जो आपने दिखाया, has there been any steps taken उसका जीर्णोद्धार करने के लिए? नहीं, अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं हुआ है। Okay, madam. And और बांग्लादेश का जो बताया है मैंने, वो बहुत शॉर्ट में बताया आप लोगों को। अभी मैं पढ़ रही थी मतलब अभी 2-3 दिन पहले, तो मुझे और भी बहुत सारी नई जानकारियां मिली उसमें। तो वहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश हमारे पास मतलब ना जानकारी है, ना हम लोग जाके खोज करते हैं इस विषय में। हाँ मैडम, और बहुत सारे लोग, I mean, the many things, and also the connections of Konark Temple and the Sun Temple at Konark. So, like when you say initially there was a Jain temple, later on it was a much bigger, magnanimous temple was built. So, what is the period in which जो पहले का जो जैन मंदिर था, what is the period? उसका period क्या है मैडम? उसका पीरियड एक्चुअली उससे पहले का ही होगा निश्चित तौर पर। कोणार्क बनने के पहले मैंने एक जगह पढ़ा था किताब में कि वहां पे पहले महावीर का मंदिर था, छोटा जिनालय था, उसके बाद उसको बड़ा करके बनाया गया। तो उसी वही जानकारी मैं यहाँ दे रही थी आपको। एग्जैक्ट पीरियड मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उससे पूर्व का ही होगा। Okay. Any other questions? I think let us know if there are any other questions before we conclude the session. If you would like to speak to madam, you can raise your hands and we will let you speak. We'll unmute you and you can be in the spotlight and we can let you speak. Any questions from the audience? I think Sandeep Kanji has a question. Sandeep Kanji, आप unmute कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर। हेलो मैडम। जी हाँ, हेलो।
हाँ जी जय सर, सुन रहा है, बताइए। जय जिनेन्द्र मैडम, मैं आपके बहुत ही अच्छा आपने विवेचन किया, और स्पेशली जो आपने ईस्टर्न बेल्ट का जो भी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो जैन धर्म का था, खास तौर से हमें लगता है कि हम लोगों ने अपने इतिहास और पुरातत्व का कुछ भी ध्यान नहीं रखा हमारी समाज ने। अदरवाइज इतना ज्यादा, और स्पेशली चलिए खैर उनका नहीं कर पाए, वो तो पत्थर थे। अब जो लोग जो हैं वहां के सराक, जो आज भी बेचारे इतनी एडवर्स स्थितियों को झेलते हुए भी जैन बने हुए हैं, क्या हम उन्हें नहीं संभाल सकते? क्या हमारी इतनी बड़ी, इतनी समृद्ध समाज कहलाती है, एटलीस्ट हम उनका जो जीवंत रूप है जैनियों का, उनको ही संभाल लें। ये पत्थरों को तो हम नहीं संभाल पाएंगे, ये तो निश्चित है। आपने लेकिन बहुत अच्छा विवेचन किया। यदि हम हमारी भावना है और हमारी चेष्टा है तो हम दोनों को संभाल सकते हैं, और इस दिशा में काम हो रहा है। सराक जाति का उद्धार के लिए काफी काम हो रहा है। कुछ साधु संत भी आए हैं, उस जगह क्षेत्र में गए हैं, और वो लोग लगातार टच में हैं, उनको नौकरियां दिला रहे हैं, कुछ नए काम वहां पे खोलने का उन लोग का विचार है। और जहां तक मूर्तियों के संरक्षण का बात है, तो उसमें देखिए बिना गवर्नमेंट के हेल्प के बिना वहां हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो लोग या तो मूर्तियों को उठाने नहीं देते वहां से। क्योंकि हम जब गए थे हमने चेष्टा करी थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का तो इसमें मतलब कोई रुचि नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए तो ये काम हो सकता है। नहीं, लेकिन हमारी समाज में भी तो रुचि नहीं है इन चीजों की। इतना आपका इम्पोर्टेंट आज का सेशन है, और इतनी अच्छी बातें आप बता रही हैं, और सब बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 35 लोग जुड़े हुए हैं, और जो जुड़े भी हैं वही केवल। तो क्या इतनी बड़ी समाज में हम आज तक जागृति ला ही नहीं पाए? और जबकि लगातार ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, और हम अपने इतिहास की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। ये तो इतिहास का एक बहुत छोटा सा अंश है। यदि आप पूरा सुनेंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे, मुझे लगता है। मैं आपको बताऊं मैडम, एंड्रॉइड मंदिर सर, रंजीत कांत जी आपका आवाज एंड्रॉइड मंदिर आ रहा है। आई थिंक वी विल ಕೇಳ್ತೀನಿ एंड्रॉइड मंदिर I think with this we will conclude the session. I think thank you. I will thank Lata Botra ji and Akash ji as well. 1 second, madam. I think we have one more question coming in. Dr. H.A. Parshnath ji hai. He is my father, and he is also the founder of the website, co-founder of the website. It is because of him that we are able to come through these past 19 years. I think I would like to request my father, Dr. H.A. Parshnath sir, to kindly ask his question. At the outset, I have to compliment the madam for enlightening about the heritage of Jainism in the eastern India, at Bengal and also Orissa. Madam, I would like to know the comparative study that is done between Jainism, Buddhism, is relevant to Atigumpa, Karvela and Ashoka, where they struggled hard and contributed immensely for the growth and development of both the religions. A comparative study. Can you please enlighten about it, madam? Madam, mainly the main thing is जो हमें पता है, Karwel was a Jain king because of the Hathi Gumfa inscriptions and all other details. But later on we see Ashoka moving on to the Buddha tradition. How was the transformation? How is that happened? That kind of thing. Any points है आपके based on your study, madam? मैं पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, बीए तक मैंने इतिहास पढ़ा। मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो उसके बाद मुझे एक उड़ीसा से एक गवर्नमेंट ऑफिसर वो आए थे हमारे पास जैन भवन में। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने ये ऐसे प्रश्न भी पूछे कि जिस समय अशोका ने अटैक किया था कलिंग में, वहाँ कौन राजा थे,
और किस वंश के थे, क्या थे, तो मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरा ये इंटरेस्ट जगा और मैंने इसमें खोज करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि ये खारवेल के इतिहास को बहुत दबाया गया, मतलब इसको सप्रेस किया गया। ओके। और इनका भारत के इतिहास में नाम क्यों नहीं है? और यदि हमें उड़ीसा से ये शिलालेख नहीं मिलते हाथी गुम्फा के, तो हम बिल्कुल इससे अनभिज्ञ रहते, जानते ही नहीं कि खारवेल कौन है आज। तो और ये शिलालेख मिलने के कारण हम ये जान पाए हैं कि ये जैन थे और ये इन्होंने ये काम किए और इनका साम्राज्य इतना बड़ा था। ये सारा वर्णन है उसमें। और फिर हमारे यहाँ भी किसी साहित्य में नहीं है, सिर्फ एकमात्र हिमवंत पट्टावली में ही हमें उनका विवरण मिलता है, जिसको प्रकाश में ही नहीं लाया जाता, लोगों को बताया ही नहीं जाता। तो यदि आप कंपैरिजन करें तो अशोक से भी ये बहुत महान है, क्योंकि इनके विषय में मैंने किताब भी लिखी है खारवेल के ऊपर। तो इनका जो 13 साल का पीरियड है वो यहाँ पे दर्शाया गया। उसके बाद का पीरियड है वो कश्मीर के इतिहास में हमें मिलता है। और वहां पर मतलब उसमें एक ब्राह्मण जो कल्हण है वो लिखते हैं कि ये जलचर, वायुचर, जीवों की भी सुरक्षा में प्रतिबद्ध थे। इतना, और इन्होंने जहां भी युद्ध किया वो अहिंसा के लिए किया, वहां पे अहिंसा के प्रचार के लिए किया, Okay, madam. लोगों को मारने के लिए नहीं किया। No, but what was the reason for a transformation? Same वंश में खारवेल के बाद you were transformation from of Ashoka from getting onto Buddhism, madam. ये एक अलग पूरा है चैप्टर कि कैसे हुआ अशोका का, क्योंकि Right, madam. हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर मेरा एक काम हुआ है गौतम बुद्ध और गणधर गौतम के ऊपर। तो इसमें मैंने अशोका के ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ और मतलब ये बता समझाना थोड़ा सा इतना शॉर्ट में बहुत थोड़ा मुश्किल है। समझ गया मैडम। अदरवाइज ये एक षड्यंत्र था। ये हमें जो दिखाया गया वो कॉन्स्पिरेसी के द्वारा दिखाया गया कि अशोका चेंज हो गया, कि अशोका ने क्या किया। असल में बुद्धिज्म कब बना, कैसे उसका प्रभाव पड़ा, और ये जानना हमें इसके लिए बहुत जरूरी है कि इतिहास इसका है। मैडम वन लास्ट क्वेश्चन, जो आपने बताया खारवेल्स जो एरिया जो जिस एरिया पे उन्होंने रूल किया फ्रॉम ऑलमोस्ट नियर कश्मीर टू साउथ इंक्लूडिंग सिलोन, so what is the period, कितना साल तक उसका राज था अक्रॉस दिस एंटायर इंडिया? उनका मतलब उन्होंने करीब करीब अबाउट 34 और 40 इयर्स उन्होंने रूल किया था। वो उतना फ्रॉम ऑलमोस्ट नियर कश्मीर टू टिल सिलोन। हाँ, अब उनका कश्मीर में जब वो सिलोन तक गए थे, और वहां के राजा ने उनको एक फ्लैग दिया था भेंट स्वरूप। वो फ्लैग मतलब कश्मीर में अभी मतलब काफी साल तक वो राजाओं के संग चलता था वो फ्लैग। और वो इतने इम्पोर्टेंट था कि देखिए आप संसद में राजा के भवन में उनका हॉल में उनका फोटो चित्र बना हुआ है। गॉट इट मैडम। हाँ, लेकिन हमारे इतिहास में उनका कोई नाम नहीं है, इतिहास में उनका कोई वर्णन नहीं आता। मैम खारवेल के उनके शिलालेख में भारत नाम भी मेंशन है, लोगों को नहीं पता है। जी हाँ, भारतवर्ष में उन्होंने भारत के में विजिट करके सब राजाओं को विजिट किया था। ये भारतवर्ष का नाम है, भारत नाम है उसमें। गॉट इट मैडम। मैडम आपके बुक्स कहाँ पे मिलेंगे? आपके बुक्स कहाँ पे मिलेंगे? देखिए मैंने शुरू में लिस्ट दिया, ये बुक्स तो मेरे पास ही मिलेंगी। मैं मतलब या इसमें आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें भी मिल जाएगी आपको। ओके मैडम। थैंक यू मैडम। I think do we have any other questions now? Yes sir, may I have one question sir, clarification? Yes sir, Kanakajit Das sir from Chennai. Chennai. Kanakajit Das sir, can you please switch on your camera sir? Sir, that is not working. That is fine. Madam, Kanakajit Das sir is one of the
great scholars of Tamil Jaina heritage, and he has a question. Sir, over to you, sir. Does the Kharavela inscription tell anything about his expedition towards the south, particularly to Tamil Nadu? साउथ में सतकर्णी तक मिलता है इंस्क्रिप्शन में, बाकी जो हमें वर्णन मिला वो कश्मीर के इतिहास से मिलता है हमको कि वो श्रीलंका तक गए थे. Sir, I don't understand. So, I madam, don't know is Hindi. saying it went on till Satkarni and also to Ceylon, and more than that, the lot of mention is more about the Kashmir region, but lesser mention about the south region. But still, we have clear mention of Kharvela moving up to Ceylon. Okay, thank you, sir. Thank you. Do we have any other questions? I think if we do not have, what we will do is we'll just, I would like to thank Lata Botra madam for taking us forward a Jaina history so close to about 3,000 years, 2,800 to 3,000 years old, along with telling us the history of Jainism in Bangladesh, the West Bengal, and even Orissa, Jharkhand, Assam, and many other regions. I think it was very, very enlightening. I think the way what madam has given us, it's a clear indication that Jainism existed to a great extent in the Eastern India, and even our architecture, when we look at the temples and the architecture, I think they have been of extremely great architecture in terms of in contemporary with any of the other religious architectural patterns. I think this was very enlightening. And more than anyone, I would like to thank Akash ji for helping us out with having a discussion with Lata madam and setting up this session. Thank you, Akash ji. I would like to thank Lata madam once more for coming over and enlightening us in this session. I think, thank you. Jai Jinendra. एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो बंगाल में जो जैन पुरातत्व मिलते हैं शायद सबसे अधिक यहाँ पे मिले हैं. उसके बाद लेकिन कर्नाटक में भी बहुत ज्यादा है. हम 2 साल पहले वहाँ घूमे थे पूरा. हाँ मैडम. तो अपने अपने क्षेत्र में रीजन में हमें अपने अपने जो ये जैन पुरातत्व हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, बहुत जरूरी है. और उनका हर एक जगह का इतिहास निकाल के देखना चाहिए कि वो पहले क्या थे और अभी क्या है. ये जानना बहुत जरूरी है. नहीं तो क्या होता है कि मोस्टली जगह सब परिवर्तन हो चुका है. राइट मैडम, राइट मैडम. हाँ, तो इस ओर अगर समाज थोड़ा जागृत हो तो ये मैं चाहती हूँ कि इस ओर समाज का काम होना चाहिए. साधु साध्वी का भी इसमें रोल रहना चाहिए. राइट मैडम. और दूसरा चीज है हमारे यहाँ जो श्रावक धर्म है, जो हमारा आपको मालूम है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने वो अंतिम सम्राट थे जिन्होंने इस आश्रम धर्म का पालन किया था. उन्होंने राजा रहते हुए अपना राजपाट त्याग दिया था. अंतिम उसके बाद कोई ऐसे राजा नहीं है जिन्होंने राजा रहते त्याग दिया था. तो इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये आश्रम व्यवस्था क्या है. आप लोग यंग लोग हैं, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें. आश्रम व्यवस्था के ऊपर क्या था, क्यों हिंदू धर्म में इसको इतना किस तरह प्रोमिनेंट किया गया, वास्तव में ये कहाँ था, जैन धर्म में इसकी मान्यता कैसी थी, इस पे भी ध्यान दें थोड़ा. Right, madam. Sir, one more clarification. Go ahead with your question, sir. See, actually, because of language problem, I couldn't understand, follow it. Which place in our presentation show 3,000 years old record? Almost 2,800 years old. One of the places madam showed us. Where? Which place? I've just made a note of it. I think we can just go back and look at it, sir. One of the places is called as Para. मैं बताती हूँ, पांडु राजा डिबी का जो लेख मैंने किया है वो 4000 साल पुराना कहते हैं उसको. वो महाभारत कालीन कहते हैं. और उसमें जो हमारे यहाँ जो वासुदेव हिंदी है उसका और उससे काफी मतलब साहित्य और उस जो खुदाई में जो मिला है उससे काफी टैली करता है वो चीज. तो मेरे ख्याल ये काफी पुराना हो जाता है, महाभारत कालीन हो जाता है. उसके अलावा जो हमें मिले वो 2500-2600 साल पहले भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं हमें. Sir, is it supported by inscription? Madam,
इंस्क्रिप्शंस का उल्लेख है? देखिए, बंगाल के सेंसस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, पांडु राजा डिबी और का बात और महाभारत कालीन और जैन बस्ती का बात लिखा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद हमने अपने साहित्य में देखा तो दोनों को मिलाया, इंस्क्रिप्शन वहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिला, वहाँ पर नहीं। Right, madam. Right, madam. I think if anyone would like to speak, I think we can speak. We have the time. Good evening, Samyak Darshan, Nitin ji. Madam, would Can you request hear me? to start your video so that everyone else can look at it, see you. But 1 minute. I am so in like a home I am like there. Not a problem, because we are all at home. That is the best part of the technology. Okay, thank you. Madam Lata Botra's 2 times I have seen your presentation, madam. Last time also I have seen, and Ashtabad video also I have seen. And you are with much knowledge about east side of your place, and so I am thankful to you, madam. Only once I have been to this Hathigumba and Kanakagiri, Udayagiri. So again and again, if I see, I get more knowledge. Thank you so much, madam. It was very nice presentation. And thank you, Nitin. Sure, madam. Thank you, madam.